Everyone, welcome back to this e-lecture on the topic chemistry of lanthanide elements. So in the previous lecture we were discussing the consequences of lanthanide contraction. So we saw that the first consequences was that जो है there was a close resemblance, we noticed a close resemblance amongst the properties of lanthanides, and we saw the resemblance and the similarity of yttrium with heavier elements, heavier lanthanides, and we also saw that lanthanide hydroxides जो हैं दे आर आयनिक एंड बेसिक, है ना. तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक हैं, ज़्यादा प्रबल हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में जो है वीक बेसिस हैं. तो यानी कि जो बेसिक करेक्टर है वही उसी दिशा में कम हो रहे हैं जिसमें कि जिस दिशा में आयनिक साइज में कमी आ रही है ना. तो व्हेन वी ऑब्जर्व दी क्लोजली द लैंथेनाइड सीरीज, तो हम पाते हैं कि इनके हाइड्रोक्साइड्स में लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है ना, LnOH होल थ्राइस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीकेस्ट बेस है ना. तो ऐसे ही जो इनके जो हाइड्रेटेड आयंस हैं उसमें भी वाटर हाइड्रोलिसिस की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए विलेन की अम्लता बढ़ानी पड़ती है. Now today we are discussing the anomalous behavior of post lanthanides, यानी कि जो लैंथेनाइड के बाद के आने वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका असामान्य आचरण. The anomalous behavior of elements following the lanthanides is a direct consequence of the lanthanide contraction. The effect of this contraction is so much that the atomic size of the post lanthanides of third transition series, instead of being larger than their lighter congeners, they are often smaller or almost equal to the group members of which are placed above them. So the anomalies observed in the atomic and the ionic radii, ionization energy, and electron negativity and density of these post lanthanide elements are going to be discussed today. So first we move to atomic size. When looking at this table 4.3, okay, we observe that there is an increase in the ionic radii of the elements of second transition series as compared to that lighter congeners of the first transition series. For example, the ionic radius of zirconium plus 3 is about 9% more than the titanium plus 4. So similar trend is not maintained on passing from the second to third transition series. So the ionic radius of hafnium plus 4, instead of increasing, है ना, why? Because of the inclusion of one more electronic shell, it decreases, or it is virtually equal to zirconium plus 4 as a consequence of the lanthanide contraction. So this explains the close similarities between the members of the second and third transition series than between the elements of the first and second transition series. So thus striking similarities exist between the zirconium and hafnium, niobium and tantalum, molybdenum and tungsten, technetium and rhenium, and the occurrence of these pairs together in nature. So had the lanthanide elements not intervened, अगर ये नहीं होते बीच में, तो radii of the post lanthanide elements would have been approximately 0.15 angstrom larger than they actually are. So instead, the lanthanide contraction nearly crosses completely this expected increase. ठीक है. तो क्या है कि जब हम when we observe this table, what we see कि अपेक्षा के अनुसार जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों की जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की रेडियाई से अधिक होती हैं, है ना. जैसे कि जर्कोनियम की जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, जर्कोनियम प्लस 4 जो है वो मतलब जर्कोनियम एंड जर्कोनियम प्लस 4 एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, वो जो टाइटेनियम से लगभग 9% अधिक है, जबकि सेकेंड सीरीज़ से थर्ड सीरीज़ पे जाने पे ऐसा नहीं होता ना. हाफनियम की जो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई है वो जर्कोनियम के लगभग समान होती है. ठीक है. अब व्हाट वी फाइंड इज़ दैट कि
वर्गों में जो जो हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत सिमिलैरिटी पाई जाती है ना। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के सदस्यों की गुणों की तुलना में सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑन द दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक रेडियाई, है ना। तो इसी कारण जर्कोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटिलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम एंड रीनियम के गुणों में आपस में बहुत अधिक समानता होती है और प्रकृति में भी ये एक साथ और में एक साथ पाए जाते हैं। तो लेंथेनाइड अगर बीच में नहीं आते तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की त्रिज्याएं हैं वो वर्तमान त्रिज्या से लगभग 0.15 एंगस्ट्रॉम अधिक होती ना। लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से पहले आने वाले जो बीच में जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं इनका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनके आकार में होने वाली एक्सपेक्टेड वृद्धि को समाप्त कर देता है। ठीक है, आप यू ऑब्जर्व क्लोजली दिस टेबल। तो बिकॉज ऑफ the lanthanide contraction, the post-lanthanide elements, they have stronger positive field and thus the electrons are held more tightly than they would be if the rare earth had not intervened, है ना। तो in general electron negativity decreases in a group of periodic table, but because of the lanthanide contraction the post lanthanide elements यानी कि transition elements of third series they have almost the same covalent radii as their congeners of the second transition series, but the greater effective nuclear charge of the former makes them more electronegative than the later. ठीक है, तो क्या कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की आयनिक ऊर्जा, है ना, आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में वृद्धि के परिणामस्वरूप क्या होता है, इस वृद्धि के रूप में भी हम इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव देख सकते हैं, है ना। आपको पता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या, एक तो आयनेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये गुण जो है ऊपर से नीचे आने पे घटते हैं ना। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हियर वी हैव नॉट शोन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण पोस्ट लेंथेनाइड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मजबूती से आकर्षित होते हैं, है ना। अगर एलिमेंट्स लेंथेनाइड एलिमेंट्स इन तत्वों से पहले नहीं आ जाते तो यह आकर्षण इतना अधिक नहीं होता, तो आयनेशन एनर्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, इनका एटॉमिक एंड आयनिक साइज बड़ा होता है ना। तो वैसे जनरली पीरियोडिक टेबल में जो है आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर वाइल कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम होती है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जो कोवेलेंट रेडियाई है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अपने सजातीय वर्गों की कोवेलेंट रेडियाई के कंपैरिजन में मतलब कि इट बिकम्स इक्वल टू देम, है ना, उसके लगभग बराबर हो जाती है। लेकिन पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स का जो प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज है अधिक होने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने से ऊपर के तत्वों की तुलना में अधिक हो जाती है, और यही कारण है कि संक्रमण वर्गों में ऊपर से नीचे आने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पहले तो घटती है लेकिन बाद में बढ़ती है। ठीक है ना। तो in general, as I told you that electronegativity decreases in a group in a periodic table, but because of the lanthanide contraction post lanthanide elements they have almost the same covalent radii as their congener of the second transition series. ठीक है, now we come to the next result or the consequence of this lanthanide contraction, that is high density. Because of lanthanide contraction the atomic size of the post lanthanide elements it becomes very small, and consequently the packing of atoms in the metallic crystals becomes so much compact that their densities they become very high. Thus, while the densities of the second transition series elements are only slightly higher than those of the elements of the first transition series, जिसमें कि density just it varies from 1.5 to 4.
the densities of the third transition series elements are almost double to those of the second series transition series element, as you can observe from the table. यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो पोस्ट लेंथेनाइट के बाद में आने वाले जो तत्व हैं ट्रांजिशन सीरीज़ के, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि इनके एटम इतने छोटे हो जाते हैं कि इसके कारण मेटेलिक क्रिस्टल में इनका कॉम्पैक्ट, इनका जो अरेंजमेंट है ना, पैकिंग जो है वो इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है कि डेंसिटी इट बिकम्स वेरी हाई। अतः सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो तत्व हैं उनकी जो डेंसिटीज़ हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों के घनत्व से अधिक, कुछ ही अधिक होते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के तत्वों के घनत्व जो है, डेंसिटीज़ जो हैं, वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के डेंसिटीज़, एलिमेंट्स की डेंसिटीज़ के लगभग दुगने हो जाते हैं, which can be seen from the table shown here. Okay, so with this we complete the consequences of lanthanide contraction. In the next lecture we'll be covering the complexation of these lanthanides. So see you there. Goodbye.